الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم المقام حضرت مولانا سید اسحاق پاشا صاحب، امام خطیب مسجد اعظم، کامل الفقہ جامع نظامیہ، معزز حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کی ایک قول کے مطابق 20ویں تاریخ اور ایک قول کے مطابق 21ویں تاریخ، یہ وہ برکت اور عظمت والی تاریخ اور دن ہے کہ جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ ابو تراب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا دن۔ اس مناسبت سے آج انشاءاللہ تعالی حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ اور آپ کی خصوصیات اور آپ کے علم کے کمالات سے متعلق چند باتیں ہم آپ کے سماعت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاضرین، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام کو ہدایت کے ستارے فرمائے اور اپنے مقدس اہل بیت کو نجات کی کشتی فرمائے۔ ہمارے دین کا دار و مدار انہی مقدس شخصیتوں پر ہے۔ یہ قوم اگر اپنے اکابر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو بھول جائے تو نہ ان کا مستقبل دنیا میں اچھا ہوگا اور نہ ہی آخرت میں اچھا ہوگا۔ یہ جو شخصیتیں ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت کرنا ایمان کے اجزاء میں شامل ہے، اور ان کی زندگی کے متعلق معلومات حاصل کرنا ایسا ہی ہمارے لیے ضروری ہے جتنا کہ ہم قرآن مجید، احادیث پاک اور دینی مسائل کی معلومات رکھتے ہیں یا اس کو پاک جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا، احادیث شریفہ کا، دین کا دار و مدار انہی شخصیتوں پر۔ یہ نہیں ہے تو نہ قرآن ہمارے پاس ہے، نہ حدیث ہمارے پاس ہے، اور نہ ہی دین ہمارے پاس۔ ایسے عظیم مقدس شخصیتوں میں، خلفائے راشدین میں عظیم ترین شخصیت کہ جن کی عظمت آسمان کی بلندیوں سے بڑھ کر، ان کی رفعت سورج کے کمالات سے اونچی اور ان کی روشنی چاند اور ستاروں سے زیادہ، وہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک۔ حاضرین، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور کم عمر صحابہ کرام میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیات میں سے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کہ میں کم عمر تھا، غالباً عمر 10 سال تھی، فرماتے ہیں کہ میں پہلے ایمان لایا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ بچوں میں میرا ایمان پہلا ہے، یہ آپ کا ہی فرمان ہے۔ اور ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب کوئی نہیں تھا تو میں مکہ کی وادیوں میں ساتھ ساتھ چل کر نمازیں ادا کرتا تھا۔ گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نمازیں ادا کرتی تھی وہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکے کی وادیوں میں جو نمازیں ادا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاضرین، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی ہے، لقب مرتضیٰ ہے۔ علی کا معنی ہے بلند، مرتضیٰ کا معنی ہے چنندہ، جن سے رب راضی ہے، اور آپ کی کنیت ابو تراب۔ ابو تراب آپ کی کنیت اس لیے ہے، اس کا معنی ہے مٹی والے۔ تراب دراصل مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو کہتے ہیں۔
मिट्टी के जो छोटे ज़र्रात होते हैं उनको तुराब कहते हैं। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के सहन में लेटे हुए थे और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर तशरीफ ले गए। वहां पर नहीं पाया तो आपकी शहजादी सैयदा कायनात हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि हज़रत मेरे शौहर नामदार मस्जिद में। हुज़ूर वहां तशरीफ लाए और उनके बदन पर, जमीन पर जो लेटे हुए थे, इस वजह से बदन पर मिट्टी के ज़र्रात देखे। उन पर हाथ फेरते हुए प्यारे आका ने फरमाया, कुम या अबा तुराब, ऐ अबू तुराब उठो। तो जब से आपकी कुनियत अबू तुराब होगी। इसमें इस वाक़ये से अहम तरीन सबक हमको जो मिलता है वो ये है कि हाज़िरीन, शान इंसान की कितनी अच्छी और बुलंद क्यों ना हो, लेकिन उसकी आदत खाक नशीनी होनी चाहिए। अपने आप को बुलंद समझना, बड़े समझना और दूसरों से बढ़कर जानना, किसी को कमतर समझना, ये सबक, ये दर्स हमको हज़रत मौला अली ने नहीं दिया है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी अली है, जो अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात इलाहिया में से है, लेकिन उसके बावजूद आपकी शान भी बुलंद थी, लेकिन सिफत ऐसी थी कि खाक नशीनी को पसंद फरमाते थे, जमीन पर लेट जाते थे, बदन पर मिट्टी लग जाती थी। और ये कुनियत जो प्यारे आका ने आपको अता फरमाई, उसको आपने ऐसे पसंद किया, अपने नाम का एक हिस्सा बना लिया। आज भी जमाना आपको अबू तुराब के नाम से जानता है। अरे, आपका एक और लक़ब है, वो है हैदर। हैदर का माना क्या है? हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालिदा ने मेरा नाम बचपन में हैदर रखा। क्या माना है तो उसकी वजह बयान की जाती है। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी शीर खार थे, कम उम्र थे, झूले में लेटे हुए थे। उस दरमियान में एक बड़ा सांप आपके करीब आया और आपकी वालिदा माजिदा घर के काम में मसरूफ थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस कम उम्री के जमाने में झूले से उतरकर सांप को मार दिया और फिर झूले में लेट गए। आपकी वालिदा माजिदा ने ये मंजर देखा तो जबान से निकल गया, इन्ना इब्नी हादा हैदरतुन, कि ये मेरा बेटा हैदर है, यानी वो शेर जो पलट कर हमला करता है। तो कम उम्री में आपकी खुद की हिफाजत और जवामत में वो बहादुरी का ये हाल था। गौर की देखे शीरखार बच्चों को कहाँ होश रहता है, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आम बच्चों की तरह नहीं थे। अल्लाह ताला ने आपको बेशऊरी के जमाने में भी कमाल शऊर अता फरमाया। हाज़िरीन किराम, इससे भी हमको सबक मिलता है कि बच्चों की परवरिश माँ बाप ऐसी करनी चाहिए कि वो बेशऊरी में भी बाशऊर हो, गफलत की जिंदगी ना हो। हाज़िरीन किराम, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कमालात तो बहुत सारे हैं। आज इंशाअल्लाह ताला एक खास आपकी सिफत है, वो है बाबुल इल्म। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का, दीन के इल्म का, उलूम इस्लाम का आप दरवाजा हैं। यानी इल्म दीन, चाहे वो उलूम कुरान हो, उलूम हदीस हो, उलूम फिक़्ह हो, उलूम तौहीद हो, उलूम मारिफत हो, सारे उलूम का, नबवी उलूम का दरवाजा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उलमाए किराम ने इसकी तशरीहात में बहुत सारी बातें लिखी है। पहले आप हदीस पाक समाअत कीजिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। हुज़ूर ने फरमाया कि मैं इल्म का दरवाजा हूँ और अली, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। हाज़िरीन, इल्म किसको कहते हैं? इल्म दरअसल मारिफत इलाही का नाम, अल्लाह की पहचान का नाम इल्म है। इल्म दरअसल कामिल यकीन का नाम है। जिसके पास इल्म होता है वो यकीन ज्यादा रखता है, जिसके पास इल्म होता है वो अल्लाह ताला से ज्यादा डरता है। कुरान मजीद ने कहा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह ताला से डरते हैं तो बस अल्लाह के बंदों में से उलमा ही, यानी खौफ खुदाबंदी उलमा के पास होता है। और ये इल्म का दरवाजा हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो अल्लाह का खौफ हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ज्यादा है, खशियत इलाही। और खशियत इलाही ये भी एक यकीन और ईमान का नाम है। अरे
حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے متعلق ایک تو یہ حدیث پاک، دوسری حدیث شریف جو جامع ترمذی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، حضور نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم اور حکمت دونوں ایک ہی معنی میں، کچھ زیادہ دونوں میں فرق نہیں ہے، مگر ایک باطنی فرق ضرور پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ علم ظاہری علم پر بھی بولا جاتا ہے، باطنی علم پر بھی بولا جاتا ہے، اور لفظ علم کسبی علم پر بھی بولا جاتا ہے، وہابی علم پر بھی بولا جاتا ہے۔ یعنی علم وہ بھی ہوتا ہے جو بندہ خود سیکھے، اور علم وہ بھی ہوتا ہے جس بندے کو رب خود سکھائے۔ اللہ جو علم بندے کو سکھاتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں، اور بندہ جو علم خود سیکھتا ہے اس کو علم کسبی کہتے ہیں۔ اور جو کسب کا علم ہوتا ہے مطلب کوشش اور محنت سے حاصل ہونے والا، یہ علم دین کا بھی ہوتا ہے، دنیا کا بھی ہوتا ہے، اور دین کے علم میں پھر ظاہر بھی ہوتا ہے، باطن بھی ہوتا ہے۔ ظاہر اور باطن کا معنی کیا ہے، یہ فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں علم ظاہر کا مطلب بہت معمولی چیز ہے۔ حاضرین کرام، علم ظاہر معمولی نہیں ہے، علم ظاہر بنیاد ہے، علم ظاہر اساس ہے، علم ظاہر بیسک ہے۔ علم ظاہر نہ ہو تو باطن کا وجود ہی نہیں ہے۔ علم ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ علم قرآن کو کہتے ہیں، علم تجوید کو کہتے ہیں، جس میں تلفظ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ علم ظاہر علم تفسیر کو کہتے ہیں، علم ظاہر علم حدیث کو کہتے ہیں، علم ظاہر علم فقہ کو کہتے ہیں۔ اسی علم پر امت مسلمہ کی نمازوں کا ٹکاؤ، روزوں کا ٹکاؤ، عبادتوں کا ٹکاؤ، عقیدوں کا ٹکاؤ۔ عقیدہ نہ ہو تو ایمان نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ علم ظاہر نہ ہو تو نہ علم ہے، نہ فقہ ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، اور نہ ہی معرفت خدا بندی، اللہ کی معرفت، نبی کی پہچان بھی حاصل ہوتی ہے تو علم ظاہر سے حاصل ہوتی ہے۔ علم ظاہر کوئی معمولی شے کا نام نہیں ہے۔ ہاں، علم ظاہر میں جب کوئی گہرائی میں جاتا ہے تو اس کو باطن کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کو فقہاء، علماء، بزرگان دین نے اس انداز میں بیان کیا کہ علم ظاہر بیج ہے اور علم باطن اس کا حل ہے، اور علم ظاہر در حقیقت دودھ ہے، اور علم باطن اس سے بننے والا مرحلے طے کر کے بننے والا گھی اور مسکا ہے۔ یہ فرق ہے علم ظاہر اور باطن میں، بغیر علم ظاہر کے باطن کا وجود نہیں ہوتا۔ حضرت نبی پاک رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم اس دنیا والوں کو ملا ہے وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور حضور در حقیقت حکمت اور علم کا دروازہ، حکمت اور علم کا گھر اور شہر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کا بھی دروازہ ہے، اس گھر کا بھی دروازہ ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ حضور نے آگے فرمایا من اتل بیتا من اتل مدینہ فلیأتی بابہ، جو شہر یا گھر کو آنا چاہتا ہے وہ گھر اپنے دروازے سے آئے، یعنی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے بغیر نہ علم ظاہر مل سکتا ہے، نہ علم باطن مل سکتا ہے۔ یہ شان حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب حاضرین کرام، اتنی بات سمجھنے کے بعد ہم یہ بات بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے دین میں علم اور علماء کی اہمیت کیا ہے۔ آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگوں کا رجحان اور خیال یہ ہے یہ عالم جو ہوتے ہیں ان کو بولنا آتا ہے، فتوے دینا آتا ہے، بات بات پر فتوے دیتے ہیں، ان کا کیا اعتبار، ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ لوگوں کا مزاج ایسا بڑھتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین کی بنیاد ہے، اسلام کی حیات ہے۔ علم نہیں تو اسلام نہیں، علم نہیں تو دین نہیں۔ تو دین کی بنیاد علم دین ہے، اور علم کتابوں میں نہیں، علم علماء کے سینے میں ہوتا ہے۔ کتابوں سے عالم دین کے سینے میں علم آتا ہے، اور یہ تمام دنیا کے عالموں کے سردار حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو لوگ علماء کی ناقدری کرتے ہیں در حقیقت
وہ علم کا مرکز باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، اگر وہ علم کی قدر کرتے، علماء کی قدر کرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی قدردان ہوتے، کیونکہ علم کی نہریں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتی۔ حاضرین کرام، دنیا میں جو لوگ کتنے قسم کے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تفسیر کستوری میں اور تفسیر مدارک میں یہ لکھا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لوگوں کی تین قسمیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک فرمایا العلماء الربانیون، وہ عالم جو اللہ والے، وہ عالم جو اللہ والے ہیں، یعنی علم سیکھ کر اپنے علم پر عمل کرنے والے عالم ربانی کہتے ہیں، ان کو عالم ربانی کہتے ہیں۔ دوسرے وہ عالم جو علم سیکھتے ہیں مگر وہ اپنے علم پر کما حقہ عمل نہیں کرتے، عامل تو ہوتے ہیں مگر کما حقہ عمل نہیں کرتے۔ پھر فرمایا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی تیسری قسم وہ ہے کہ جو جاہل ہیں اور ناواقف ہیں، ہر دھرم ہیں، نہ علم کو مانتے ہیں نہ علماء کو مانتے ہیں۔ اب ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے کس زمرے میں شریک ہونا چاہتے ہیں، عالم ربانی بننا چاہتے ہیں یا عالم باعمل بننا چاہتے ہیں یا پھر عالموں کے دشمن یا ان کے ناقدردان عام جاہل بننا چاہتے ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی قدر کتنی کرتے تھے، اس بارے میں اور چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات راحت المحبین، ان ملفوظات میں لکھا جاتا ہے، آپ نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملک عراق کو اپنا دارالخلافہ بنایا، مدینہ پاک میں، مدینہ پاک دارالخلافت تھا 3 خلافاتی زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک مدینہ پاک اسلام کا کیپٹل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو عراق میں منتقل فرما دیا، کوفہ اور بغداد کو اپنا مرکز بنایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لے گئے تو چھوٹے چھوٹے جو گاؤں اور قصبے ہوتے ہیں، بصرہ، کوفہ اور دیگر مقامات پر آپ وہاں تقریر فرماتے، سیر فرماتے اور مسجد مسجد، مجلس مجلس تشریف لے جاتے، جہاں علم دین کا درس ہوتا اور جس کو درس دیتے ہوئے دیکھتے اس کو روک دیتے اور فرماتے کہ تو اہل نہیں ہے، تجھے واعظ بیان نصیحت کرنے کا حق نہیں، پابندی لگاتے مجلس سے۔ ایک مرتبہ آپ ایک محفل میں گئے، وہاں پر ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ علم دین کا درس دے رہے، حدیث پاک سنا رہے۔ ان کی باتیں سننے کے بعد سوال کیا کہ بیٹا آپ کون ہیں، عالم ہیں، متعلم ہیں، یعنی آپ جاننے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں؟ تو وہ جو نوجوان تھے درس دے رہے تھے، انہوں نے کہا، وہ جانتے نہیں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ حضرت نہ میں عالم ہوں اور نہ ہی میں طالب علم ہوں، میری کیا بساط کہ میں علم سیکھوں، میں بس اتنا کرتا ہوں کہ جو حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہیں وہ میں دوسروں کو سنا دیتا ہوں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری مجلس باقی رکھو اور تم لوگوں کو سکھاؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا بولنے اور بتانے کا، واعظ اور نصیحت کرنے کا حق صرف اسی کو ہے جو جانتا ہے اور اللہ کے نبی کی باتیں سناتا ہے، احادیث پاک جو سناتا ہے اسی کو کہنے کا حق ہے۔ یہ فرما کر آپ جب جانے لگے تو وہ جو نوجوان تھے انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون بزرگ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ سننے کے بعد فوراً آپ پیچھے دوڑنے لگے اور حضرت کی صحبت میں ایسے رہ گئے کہ زمانہ دراز تک حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے، مزید علم سیکھا اور اتنا سیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنی باطنی خلافت بھی عطا فرمائی۔ اور آج یہ جو سلسلے قادری، چشتی، نقشبندی وغیرہ، سہروردی، ان سلسلوں کا جو تسلسل ہے وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اس واسطے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ یعنی دنیا میں آج تک کے علماء، اولیاء، اصفیاء، صلحاء جتنے اللہ کی معرفت پانے والے ہیں
वो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से हजरत अली रजी अल्लाह ताला, फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला के वास्ते से हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर, फिर हजरत नबी पाक रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सिलसिला मिलता है। तो हाजिरीन किराम, सारी बात का खुलासा ये, हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बोलने का हक सिर्फ उनको दिया जो आलिम होते हैं, जो बेइल्म है, जाहिल है, उनको बोलने का हक नहीं है। और किस बात के आलिम? कुरान के आलिम, हदीस के आलिम। कुरान और हदीस जानने वालों को नसीहत करने का हक है, बाकी किसी और को कहने का हक नहीं है। ये पाबंदी लगाकर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आलिमों की कद्र जाहिर फरमा दी, इनकी अहमियत को जाहिर फरमा दी। हाज़िरीन किराम, हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला के मुतालिक एक और हदीस पाक आई, और वो हदीस पाक आपकी इल्म और हिकमत की फजीलत को बताती है। अच्छा, पहले हम एक बात गुफ्तगू कर रहे थे, हिकमत किसको कहते हैं? उलमाए किराम ने लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मोमिन बंदे मोमिन के दिल में जिस बात का इल्का व इल्हाम होता है और उसका कोई हल किताब व सुन्नत में जाहिर में नहीं होता, यानी कुरान और हदीस के जाहिर में कोई हल नहीं होता, वो हल अल्लाह की तरफ से कुरान और हदीस के जरिए अगर डाला जाए तो उसको हिकमत कहते हैं। अब हिकमत कैसी है? हिकमत दीन की भी होती है, हिकमत दुनिया की भी होती है। बाद उलमा ने लिखा है कि हिकमत और सियासत दोनों में फर्क है। सियासत किसको कहते हैं? उलमा ने लिखा, सियासत अपने मफाद के लिए ऐसा अमल इख्तियार करना कि उसमें दूसरों का फायदा हो, नुकसान हो, इससे कोई गरज ना हो, ये तरीका इख्तियार करने को सियासत कहते हैं। और हिकमत के अपना मफाद छोड़कर कौम और मिन्नत और दूसरों के फायदे की खातिर कोई अमल इख्तियार करने को हिकमत कहते हैं। तो ये हिकमत और सियासत में फर्क बयान किया गया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत के 10 हिस्से बनाए, यानी इल्म, दूसरा माना उसका है इल्म दीन। तो अल्लाह ताला ने हिकमत के 10 हिस्से बनाए, उसमें से 9 हिस्से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाए और एक हिस्सा हिकमत का सारी दुनिया में तक़सीम हो। तो अब गौर किया जाए कि दुनिया में जितनी हिकमतें हैं, मसलिहतें हैं, होशियारियां हैं, समझदारियां हैं, अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ है, ये सारी हिकमतें सिर्फ एक हिस्सा है, बाकी 9 हिस्से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। ऐसी हिकमत अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाई। मगर एक बात की वजाहत यहाँ जरूरी है, वो ये है कि जहाँ जिस बुजुर्ग को जो फजीलत मिलती है, उस फजीलत में उनसे फौकियत रखने वाले शामिल नहीं होते। मिसाल के तौर पर कि ये जो कहा गया कि 9 हिस्से हिकमत के हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को अता हुए, फिर एक हिस्सा सारी दुनिया में तकसीम हुआ, क्या वो एक हिस्से में नबी हैं? हरगिज़ नहीं, कोई नबी उसमें शामिल नहीं। क्या उस हिस्से में खुलफाए राशिदीन है? तो वो भी उसमें शामिल नहीं है। दरअसल ये उस हिकमत की बात की जा रही है जो खास हजरत अली के लिए बनाई गई, उस हिकमत के बारे में कहा जा रहा है। बाकी अल्लाह ने खुलफाए राशिदीन को हिकमतें अलहदा दी, अंबिया इकराम को अलहदा दी, फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलहदा अता फरमाया। बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हिकमत की शान है जो सारी दुनिया में तक़सीम है। अब हिकमत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कैसी है, उसके बारे में एक दो बातें मैं पेश करके अपनी बात खत्म करूंगा। हाज़िरीन, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में मुतअद्दिद मकामात पर फैसले करने के लिए रवाना फरमाया। कभी मुल्क यमन, कभी दूसरे मकामात पर फैसले करने के लिए रवाना फरमाया। खुलफाए राशिदीन में हजरत सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन के पास कोई संगीन मसला अगर आ जाता तो वो भी उस मसले के हल के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के पास या तो खुद जाते या फिर वो मसले वाले को भेजते कि आप जाइए और मसला हजरत अली हल कर दें।
उसकी हमको बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। एक दो मिसालें मैं आपको बताऊंगा। लिखा जाता है हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इजालतुल खफा में ऐसे हिकमत की बहुत सारी तफसीलात लिखी है। उनमें से एक वाक़या हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से बयान किया गया। एक मर्तबा आपके पास एक दो लोगों का, दो औरतों का झगड़ा आया। झगड़ा ये था कि एक मकाम पर दो औरतों ने, दो औरतों की विलादत का वक्त था, जचकी का वक्त था, उनकी विलादत हुई। एक को लड़का हुआ, एक को लड़की हुई। अंधेरे में पता न चला और दाया की गफलत की वजह से मालूम न हुआ कि लड़का किसका है, लड़की किसकी। ये शक जैसे पैदा हो गया, हर माँ दावेदार हुई कि बेटा मेरा है। अब हर एक इनकार करने लगी कि बेटी मेरी है। तो बेटी को किसी ने कबूल नहीं किया, बेटे को हर एक कबूल करने लगी। आपस में बहसें हुई। सबने तय किया कि इस मसले को हम हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला के पास पेश करें। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के पास जब मसला पेश हुआ तो आपने फरमाया कि ये दोनों औरतें अपना अपना दूध एक छोटे से बर्तन में मुझे ला कर दी। तो जितना भी दूध लाया गया आपने उसकी मिकदार बराबर रखी, यानी उसका जो पॉइंट होता है ग्राम वगैरह का, वो बराबर रखी, दूध बराबर बराबर रखा। फिर दोनों के दूध को तोला। दूध नापा जाता है, तोला नहीं जाता, लेकिन आपने दोनों के दूध को तोला। जिसका दूध वजनी निकला आपने फरमाया बेटा उसका है, और जिसका दूध हल्का निकला, कम वजनी निकला, उसके बारे में फरमाया कि बेटी इसकी। फरमाया ये दूध किसका है, लोगों ने बताया ये फलां औरत का। फरमाया ये लड़का उसका। लोग ताज्जुब में पड़ गए कि किसी को मालूम नहीं है, सब झगड़ रहे, बेटा किसका है, बेटी किसकी, आपने कैसे फैसला किया। तो हजरत ने फरमाया क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते। गौर कीजिए आज हमारी कौम कुरान पाक से कितनी दूर हो चुकी है। अगर पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, तो माह रमजान में सिर्फ अल्फाज कुरान सुनते हैं, मानी कुरान की तरफ तवज्जो किसकी है। मतालिब कुरान को कौन जानना चाहता है। माशाअल्लाह ये इतवार का दिन बाद नमाज ज़ोहर दरअसल मौलाना साहिब का दरस तफसीर होता है। तफसीर कुरान में शिरकत करनी चाहिए। कुरान के मानी मालूम होते हैं, मतालिब मालूम होते हैं। ये पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को बता क्या रहा है, फरमाना क्या चाहता है। कुरान मजीद अल्लाह ताला का मुकद्दस कलाम है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं कि तुम कुरान नहीं पढ़ते। लोगों ने कहा कि हजरत कुरान तो हम पढ़ते हैं, मगर इतनी गहराई हमारे पास कहाँ कि किसी का झगड़ा हल करने के लिए हम कुरान पे मान ही जाए। आपने फरमाया मैंने कुरान पाक की एक आयत से इस मसले का हल किया। लोगों ने पूछा हजरत वो कैसे हल किया आपने। इरशाद फरमाया देखो, विरासत, माले विरासत की जो तकसीम होती है किसी के इंतकाल के बाद, उसके अकारिब, अयीज़ा, रिश्तेदार, औलाद में जो माल तकसीम होता है, उसके मुताबिक कुरान पाक में आया है यानी मिसाल के तौर पर बाप का इंतकाल हुआ तो उस बाप की लड़की को एक हिस्सा मिलेगा, लड़के को दो हिस्से मिलेंगे। इसको दुगना मिलेगा, इसको एक मिलेगा। कुरान पाक ये बता रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने लड़की की फितरत में एक हिस्सा रखा और लड़के के फितरत में दो हिस्से रखे। उसका ताल्लुक सिर्फ विरासत, माले विरासत से नहीं है, उसका ताल्लुक अक्ल से है, इल्म से है, कुव्वत से है, सेहत से है। हर हिस्सा लड़की का एक होता है, हर हिस्सा लड़के का दो होता है। इसलिए मैंने बराबर मिकदार में दूध तलब किया, और किसके दूध में वजन ज्यादा है उसमें ग़िज़ाइयत ज्यादा है। गालिबन दूध में प्रोटीन होता है, तो जो आज डॉक्टर कह रहे हैं कि दूध में ये होता है, फला में कैल्शियम होता है, फला में वो होते हैं, बहरहाल ग़िज़ाई कुव्वत के जरासीम जिसके दूध में ज्यादा है वो दूध लड़का होने की दलालत कर रहा है। इसलिए कि जितनी ग़िज़ा की जरूरत है अल्लाह ताला माँ के सीने में अपनी उसकी औलाद के लिए उतनी ग़िज़ा रखी है। लड़के को दुगने ग़िज़ा की जरूरत है, कुव्वत ज्यादा की जरूरत है। इसलिए मैंने दोनों का दूध तोला, जिसका वजन ज्यादा निकला उसके बारे में फैसला किया कि ये लड़के का है, जिसका वजन कम निकला फैसला किया कि ये लड़की का।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा, मैं इल्म का दरवाजा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की नहरें हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए इस तरह बहा करती। बारहा कई फैसले ऐसे आए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में भी बात फैसले हजरत अली के हवाले किया और फरमाया कि इनके पास जाओ, ये फैसला कर देंगे। बाद लोग फैसले लेकर हुजूर की खिदमत में आए और कहने लगे, हुजूर हजरत अली ने ये फैसला कर दिया है। सरकार ने फरमाया, अली ने जो फैसला किया मैं उसकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि इल्म और हिकमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में मुंतकिल हुई। हाज़िरीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत याफ्ता जितने सहाबाए किराम हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हर सहाबी में कुछ न कुछ मुंतकिल। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम औसाफ जमीला अखलाक करीमाना का मरकज है और 1,24,000 सहाबाए किराम में से हर एक को कोई ना कोई खासियत और इनका फैजान मुंतकिल हुआ। हजरत सिद्दीक अकबर को कुछ खासियत है, हजरत फारूक आजम को कुछ खासियत है, हजरत उस्मान गनी को कुछ खासियतें, तो हजरत अली को कुछ खासियतें अता हुई। उन खासियतों में से, उन अहम बातों में से एक अहम खासियत है जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिली। और आपके फैसलों के मुताबिक एक और मसला है, वो ये है कि हाज़िरीन, लिखा जाता है, हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, एक औरत के पास दो लोग आए और उन्होंने कुछ मंसूबा बनाया था कि इस औरत को हम बेवकूफ बनाएंगे और इसको मुसीबत में डालेंगे। जैसे इस्तेमाल करना लोग नादान लोगों को देखकर और भोले वाले लोगों को देखकर यूज करते हैं, तो वैसे लोग के इस जहन के आए औरत के पास और तकरीबन 100 दीनार उसके पास अमानत रखा है और दोनों ने कहा कि ये तुम्हारे पास अमानत है, हम किसी गरज से सफर कर रहे हैं, हम दोनों आएंगे तो तुम दोनों को देना, अगर तुम किसी एक को दे देंगे तो फिर वो उसको वापस करना पड़ेगा, तो दोनों आएंगे तो तुम ये अमानत वापस करना, क्योंकि दोनों एक साथ रखा रहे और दोनों को एक साथ वापस करना। चंद दिन गुजर गए, वो लोग चले गए, एक शख्स आया वापस और वो औरत से कहने लगा कि हम जो तुम्हारे पास 100 दीनार रखा है तो उसको वापस कर दो। उस औरत ने कहा, तुमने खुद कहा था कि दोनों आए तो देना, जब तक दो नहीं आएंगे मैं नहीं दूंगी। तो उस आदमी ने कहा, बहलाया फुसलाया और कहा कि दरअसल मेरा जो दोस्त था वो मर चुका है, अब मैं कैसे उसे लाऊं। तो उस औरत ने भरोसा कर लिया और वो 100 दीनार उसको वापस कर दिया। फिर चंद दिन गुजरे थे कि ये दोस्त ने जिसको मरा कहकर आकर 100 दीनार ले गया, वो आ गया दूसरा दोस्त, उसने कहा कि 100 दीनार जो हम रखाए थे दे दो। उस औरत ने कहा, तुम्हारे दोस्त आ गए थे वो लेके गए। इस आदमी ने कहा कि नहीं वो तो देना पड़ेगा, हमने कहा था दो आए तो देना और तुमने एक को क्यों दिया। बेचारी वो औरत परेशान हो गई, अब क्या कर। जब उनकी बहस तकरार ज्यादा होने लगी, लोगों ने मशवरा दिया हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। तो सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारा माजरा सुने और आप समझ गए कि ये दो लोग मिलकर इसको धोखा दे। तो आपने फरमाया कि हाँ जरूर तुमको 100 दीनार देंगे, ये औरत देगी, जरूर देगी, लेकिन ये जो बाद में दूसरा शख्स आया था उससे आपने फरमाया तुम अपने दोस्त को बुला लाओ तो देंगे। वो औरत तो परेशान थी, मसला भी बड़ा परेशानी का था, लेकिन आपने इतने आसान तरीके से उसको हल किया और फरमाया तुमने कहा था कि दोनों आए तो देना, फिर तुम अकेले क्यों आए, जाओ अपने दोस्त को बुला लाओ। तो उस आदमी ने कहा, हजरत ये औरत उस आदमी को दे चुकी है। तो आपने फरमाया वो दी है नहीं दी है उस वक्त तू मौजूद नहीं था, तेरे पास कोई गवाह मौजूद नहीं है, फिर तेरी सदाकत कैसे मानी जाए। जब तक तेरा दोस्त आएगा तब तक ये पैसे वापस नहीं दिए। वो शख्स वापस चला गया और औरत बरी हो गई। मुश्किल तरीन मसाइल को इस तरीके से आप हल फरमाते थे जैसे हमारे मुहावरे में जबान में कहते हैं मस्ते से बाल निकालना, इस तरह लोगों को मुसीबत से निकाला करते। हाज़िरीन इकराम, हजरत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये इल्म और हिकमत की शान है। यहाँ से अब हमको अहम सबक क्या मिलता है। आज आप देखेंगे लोगों के पास बड़ी अक्लें होती हैं, बड़ी समझदारियां होती हैं, लोगों के मसाइल हल करने के लिए बैठे हुए होते हैं,
लेकिन अफसोस की बात है, दौलत की बुनियाद पर, ओहदे और मनसब की बुनियाद पर, ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर गरीब को दबाया जाता है, मालदार को उठाया जाता है, अपने को तरक्की दी जाती है, गैरों को दबा दिया जाता है। अपनी अकले, अपनी समझ, अपनी दानिश्वरी लोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबक दे रहे हैं कि लोगों, अगर तुम अल्लाह की दी हुई अक्ल का सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो उस अक्ल का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करो। किसी के लिए गड़ा खोदने के लिए मत करो, किसी के जेब काटने के लिए मत करो, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए ना करो, किसी के पीठ पीछे मंसूबे बनाकर उसे मुसीबत में ना डालो। रब ने अक्ल दी है तो अपनी अक्ल का इस्तेमाल उम्मत मुस्लिमा की तरक्की के लिए करें। जैसे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म और हिकमत का दरवाजा है, आपने सारी कौम के लिए जिंदगी भर फायदे का काम फरमाया। आखिरी एक बात अर्ज करा, हजरत शेखुल इस्लाम बानी जामी निजामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मकासिद इस्लाम के हिस्से हश्तुम में ये तहरीर फरमाते हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास दो चादरें, एक चादर ओढ़ी थी, एक चादर आपने बांध ली, मगर इतनी पुरानी थी कि पैबंद लगे हुए, पुरानी थी और पैबंद लगे गए। एक शख्स ने एक नई चादर आपके खिदमत में पेश की, कुछ देर आपने वो चादर ओढ़ी, फिर निकाल दी, फिर पुरानी चादर ओढ़ी। तो लोगों ने कहा कि हजरत आपने पुराना लिबास फिर क्यों पहना, जब नया लिबास आपके पास तोहफे में आया था तो आप ले क्यों नहीं लिए। तो इरशाद फरमाते हैं कि भैया, पुरानी चादर में जो सुकून मिलता है, नई चादर में मुझे वो सुकून नहीं मिलता। पता क्या चला, वो पुरानी चादर आपके बदन से मस हुई थी, आपने ओढ़ रखी थी, आपके सीने से लगी थी, और वो सीना उलूमे नबुव्वत का सरचश्मा था, मारिफत इलाही का बेबहा समंदर था। जो चादर आपके बदन से मस हुई थी उसके अंदर भी अल्लाह की मारिफत की शुआएं मुंतकिल हो चुकी थी, तो वो ओढ़ते तो आपको सुकून मिलता था। और चादर पुरानी हो, लिबास पुराना हो तो आपको सुकून मिलता था, नए लिबास में सुकून नहीं मिलता था। पता ये चला कि नया लिबास किसी और के हाथ से बना हुआ होता है और पुराना लिबास हजरत अली के बदन से चिस्पा था, इस वजह से आपके बदन की बरकतें उसमें मुंतकिल हुई थी, वो तो आपको सुकून मिलता था। इससे ये साबित होता है कि मोमिन जितना पाक होगा उसका लिबास भी उतना बाबरकत होगा, और मोमिन जितना गंदा होगा उसका लिबास भी उतना गंदा होगा। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में लिखा हुआ है कि पिछले जमाने में लोगों के लिबास मैले नहीं होते, अंबिया किराम उनके लिबास मैले नहीं होते थे, अहले बैत किराम, सहाबा किराम उनके लिबास मैले नहीं होते थे जैसे हमारे मैले होते हैं। वजह क्या है? फरमाते हैं वो हलाल लुकमा खाते। जब से लोगों ने अपने पेट में हराम लुकमा दाखिल कर लिया तब से मेलों कुचैल ज्यादा हो गया, एक बात। दूसरा है कि उनके दिल जिक्र इलाही में बदन पाक होते थे, दिल पाक होता सारा बदन पाक था, इसलिए लिबास मैले नहीं होते थे। अब गौर किया जाए कि वो जमाने के लोग कितने पाक थे और हम कैसे हैं। तो बहरहाल तरक्की हर एक इंसान के लिए उसी वक्त हासिल हो सकती है वो अपने अकाबिर और बुजुर्गों के तरीके पर चले। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सादगी की जिंदगी को पसंद फरमाते थे, मामूली लिबास को पसंद फरमाते थे। बैतुल माल में रोजाना आप झाड़ू दिया करते थे। हम अपने घर में झाड़ू नहीं देते, मस्जिद में झाड़ू नहीं देते, बल्कि कचरा डालते हैं, रास्ता बना लेते हैं आने जाने का, और दुनियावी झगड़ों के आमाज का मस्जिद को बना लिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में झाड़ू देते थे, बैतुल माल में झाड़ू देते थे और फरमाते थे कि ऐ बैतुल माल तू गवाह रहना कि मैंने मोमिनीन का हक अदा कर दिया है, तुझमें माल जमा करके मैंने लोगों का हक नहीं माना। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बैतुल माल का तकसीम करने में, बैतुल माल का माल तकसीम करने में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत पे चलते थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैतुल माल में एक पैसा बाकी न रखते थे, जैसे गनीमत आ जाती, ज़कात आ जाती, तकसीम कर देते। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी एक पैसा कभी
بیت المال में जमा करके नहीं रखा। पता क्या चला, कौम की खिदमत के लिए जो पैसा देती है उसे जमा करके रखना कमाल नहीं है, जरूरतमंद तक पहुंचाना कमाल है। ये तरीका हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। अब ऐसे आपकी हिकमत की बातें माशाअल्लाह बेशुमार है, तफसीलात तो बहुत है मगर वक्त हमारे पास बहुत कम है। ये चंद बातों के साथ मैं दरबार इलाही में दुआ करता हूँ, परवरदिगार हमने जो कुछ कहा सुना उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा। हजरत सैयदना अली के मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में ये जो महफिल आज मुनक़्क़िद की गई, मौला उसे कबूल फरमा और आपकी बरकतें हम सबको अता फरमा। आपके तसद्दुक़ में हमारी मग़फ़िरत फरमा, आपके नक्शे कदम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे ज़ाहिर व बातिन को पाक व साफ फरमा, माह रमज़ान की बरकतें अता फरमा, तमाम अशरों की फजीलतें हम सबको सरफराज फरमा। रब्बुल आलमीन ज़िंदगी में हमें बार बार रमज़ान अता फरमा, रमज़ान के बाद वाली ज़िंदगी भी पाक ज़िंदगी रमज़ान के जैसी बना दे। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।